जैसे लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो फ्लेक्सिबल लोग हैं वही योगा कर सकते हैं या फिर योगा इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई कैन सी कि आपकी ये टी शर्ट पे अलग अलग चक्रास बने हुए। तो बेसिकली चक्रास का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, हाँ, उसका स्थान ज्यादा से ज्यादा होता है हमारे मूल चक्र में, मूलाधार चक्र में। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान मेडिटेशन करने बैठता है और ध्यान इधर उधर भटकता है, मतलब सारे थॉट्स आते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, इधर उधर जो मतलब ध्यान भटक रहा है, बेसिकली स्थिर नहीं है। तो इसको कैसे डील करना चाहिए? ब्रीदिंग करने का सही तरीका क्या है? इसको कैसे डील करना चाहिए? आपकी जो नोस्ट्रल्स है, नासिका द्वार, उसमें बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ योर अनहेल्थी बॉडी, उसमें डस्ट जम जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द डस्ट यू कैन नॉट ब्रीथ इन डेप्थली व्हेन वी आर इनहेलिंग, एंड एट दैट टाइम इफ अवर स्टमक इज गेटिंग एक्सपांशन, सांस लेते ही अगर पेट फूल रहा है, दैट मीन्स यू आर ब्रीथिंग करेक्टली। तो व्हाट आर फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस जो फीमेल्स इंप्लीमेंट कर सके ताकि उनके पीरियड्स रेगुलर रहे? What are 3 best food items that a person should have to have strong, healthy and shinier hair? तो जैसे योगा का स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट है, तो ऐसा है क्या कि योगा को पीरियड्स के टाइम नहीं करना चाहिए? पहला सुख निरोगी काया, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं और अगर उन्हें एक्सरसाइज करने बोलो या योगा करने बोलो तो बहानों के साथ तैयार रहते हैं। एंड बीइंग अ योगा ट्रेनर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो। और मेरा एक ही सपना है कि एक स्वच्छ भारत के साथ साथ एक स्वस्थ भारत भी हो। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट है, इट इज़ गोइंग टू बी अ हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट। तो आइए मिलाती हूँ मैं आज के गेस्ट से। सो हाई याश, आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। और मैंने आपके कुछ योगा पोजेस देखे थे, मतलब आई वॉज लिटरली माइंड ब्लोन एंड ऑल्सो आई वॉज इट वॉज सो गुड टू नो कि आपने इतने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और योगा में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? First of all, before we start, I would like to just say thank you for having me here in this podcast. So, if I will talk about my journey, so I have been fortunate enough to start my journey at the really young age, somewhere around 6 or 7 years old when I was. Okay. So, in my school days, actually, I started participating in different championships. Yoga की championships होती थी. So, in that championship, usually earlier, like for 1 or 2 years, I was continuously practicing and preparing for those championship. In championship, you need to perform certain poses, which poses have some different categories. If you will balance on your hands, you will have better marks. So there are certain criteria of different levels of the poses, advanced, beginners, and for the intermediate. So after this, like earlier, I was just failing and losing those championship because at that age, we don't know what we need to do. If we are getting that appreciation from our parents or from our teacher, so we get more inspired, more motivation to work more and more harder. Then fortunately I have been able to get a chance and I have been able to selected in national championship after 5 years of consistent practice. Wow. And in that national championship 2018, I secured my first gold medal. Okay. Yeah. Wow. So earlier I used to have that gold medal in my state championship, but in 2018 I That secured was at gold a medal. national level. Yes, at the national level. Awesome. At that time I realized that there is something special in my own self, that yoga has chosen me to be in the path. Because I was being able to see that change in my mind, in my physical body, the way I talk, the way I behave, the way I react to the situation. And then I realized that it has changed my life 360 degree. And that has inspired me to teach others. Because I wanted to share that knowledge, share that experience which I felt, because I was so shy person. I was so like, अगर दो इंसान बात करे तो वो तीसरा इंसान मैं वो था कि मतलब जो कोने में ऐसे ही चुप था. Introvert kind of personality. But now it has changed completely. Correct. And with the help of yoga, you not only work on your physical body. Yes, it is the pathway, it is the gateway with which you start. But then you learn the other aspects of yoga. Okay. How you train your mind, how you train your emotions. And that's how my journey I have started
तो and it's बहुत ही going. मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी रही हुई है एंड इतने शुरू से आपने शुरुआत किया. आई हैव ऑल्सो बीन डूइंग योगा फॉर द लास्ट 16 ईयर्स. और तो एक चीज़ मतलब जैसे लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो फ्लेक्सिबल लोग हैं वही योगा कर सकते हैं या फिर योगा इज़ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. तो ऐसे कौन से मिसकंसेप्शन है योगा के दैट यू वुड लाइक टू बर्स्ट, बिकॉज इवन आई सी कि पीपल थिंक कि इट इज़ ओनली फॉर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इट इज़ ओनली फॉर पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स, जो बूढ़े हैं उनके लिए. बट व्हाट आर सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा? ये जो सभी मिसकंसेप्शन हमें आपने मेंशन किए उसमें एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, yoga is only for females. ओके. हाँ, Because करेक्ट. if you'll see the ratio, so in my class itself, 90% will be females. Oh, Only 10% male show-ups. So male का इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? उसका प्राइमरी रीजन है that they don't feel that pump in their body. They need to have that intense workout. If they are working on their body, so they need to be more and more harder. But you need to understand that yoga is not only about the flexibility. It's not only about to strengthen your body. करेक्ट. It depends on the style. If your nature is such a way that you need to build your muscle, that you need to work on your physical body, try to adapt different style of yoga. But at Okay. least try. You will see that this style of yoga doesn't work, so other style definitely will work for you. सो ऐसे कितनी स्टाइल्स होती है बेसिकली? So there are mainly ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है, हाँ. बट जो वेरी पॉपुलर स्टाइल है उसमें अगर मैं सबसे पहले कहूँ तो हठा योगा, हाँ. जो वेरी कॉमन और पॉपुलर Yes, है. आसन सेकंड पे है जाते अष्टांग योगा. अष्टांग योगा ऑल ओवर है, बट अष्टांग विन्यासा Okay. कि जिसमें एक आसन से दूसरे आसन में फ्लो में जाते हैं. इट्स लाइक सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार जैसे हम हाँ, करते हाँ. हैं. तीसरा स्टाइल है हॉट योगा, ओके. जो रिसेंटली पॉपुलर हुआ है योगर्षि विक्रम के थ्रू, ओके. जो यूएसए में थे. देन अभी आया है यिन योगा, रेस्टोरेटिव योगा. हाँ, करेक्ट. तो ये इंसान डिसाइड कैसे करे कि उसको कौन सा योगा करना चाहिए? बिकॉज एज अ बिगिनर तो मेरे को कोई आइडिया नहीं. से फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हु इज अ बिगिनर और उसको कोई आइडिया नहीं है कि योगा क्या करे, कैसे करे. सो व्हाट आर योर फ्यू टिप्स फॉर अ बिगिनर? That's really good. So first of all, you need to ask yourself, what's your want? What's your goal? ओके. If your want is to build your muscle, हाँ. your goal is to build your flexibility or your strength, हाँ. you should start with Hatha Yoga. ओके. और उसमें आसन आते हैं? Hatha Yoga, which means to hold certain position for the longest period of time. करेक्ट. It's like स्थिरम सुखम आसनम. आसन की एक डेफिनेशन है कि एक आसन को एक स्थिरता के साथ आप होल्ड करते हैं. ओके. हठ योगा की डेफिनेशन है हठारस्य कठित सूर्य ठकारस्य कठित चंद्रम सूर्यम चंद्रम सूर्योगात हठ योग निगद्धते, विच मीन्स हठ मानी आपके सूर्य नाड़ी, ठ यानी आपकी चंद्र नाड़ी. सूर्य और चंद्र नाड़ी को हाँ. सुषुम्ना में Okay. एकत्रित करना उसकी एनर्जी को, वो है हठ योग. और वो प्रोसेस शुरू होती है आपके यम नियम और फिर आसन से. Awesome. तो आई कैन सी कि आपकी ये टी शर्ट पे अलग अलग चक्रास बने हुए. तो बेसिकली चक्रास का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी बॉडी में? और एक ये भी चीज़ बहुत बोली जाती है कि इनको बैलेंस में रखना चाहिए. तो एग्जैक्टली ये सब है क्या, और कोई इंसान अपने चक्रास को कैसे बैलेंस में रख सकता है? सी एनाटॉमी के लेवल पे इफ यू विल सी, सो यू विल नॉट फाइंड, अगर चीर फाड़ के हमारे बॉडी को अगर हम देखेंगे, सो हाँ. इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड समवेयर कि यहाँ पे हमारे चक्रास है. करेक्ट. बिकॉज फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका. यस, देयर आर 3 थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. ओके. पहला, जो फिजिकल बॉडी जो हमारा है, हमारा बॉडी के 3 प्रकार है. ओके. स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल सब्टल बॉडी जो हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं. हमारा रक्त, हमारा मांस, हमारा मज्जा, मतलब हमारी मांसपेशियाँ, सो वो है स्थूल शरीर. ओके. उसके बाद है हमारा सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर में हमारी 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 11वां हमारा मन. ओके. सो ये 11 इंद्रियों से बना हुआ शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर. और उसके बाद है कारण शरीर, जो हमारा माइंड है. सो विद combination of all these 3 kind of body our human body has designed. और इस ह्यूमन बॉडी में हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा के जो एनर्जी के स्थान है, हाँ. वो टोटल 7 दिखाए गए हैं. Okay. शुरुआत आपकी होती है मूलाधार से, मूलाधार चक्र से, जो हमारे एनस उससे 2 इंच ऊपर की जगह है. ओके. जो हमारा शुरुआत का बंध है पहला. उसके बाद है हमारा मूलाधार एंड देन स्वादिष्ठान, ओके. जो थोड़ा सा उसके ऊपर ऊपर है. देन मणिपुर, जो एग्जैक्टली हमारी नेवल पे है.
देन अनाहत जो हमारे हृदय के पास है, देन विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रार जो हमारे टेल बोन पे जहाँ चोटी हम रखते हैं. मोंक्स को आपने देखा हाँ, होगा, हाँ, सो दे correct. कीप द चोटी टेल. ओके. सो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा सहस्त्रार चक्र है, विच मीन्स हमारी ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, हाँ. उसका स्थान ज़्यादा से ज़्यादा होता है हमारे मूल चक्र में, मूलाधार चक्र में. ओके. और योग एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी ऊर्जा को अपलिफ्ट करने की तकनीक है जो आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करती है, विच मीन्स द एनर्जी विच वी हैव स्टोर इन अवर मूलाधार चक्र. Okay. तो उसको योग साधना की मदद से हम ऊपर तक ले जाते हैं और वो पास आउट होती है अलग अलग चक्रास से. तो इन सबको बैलेंस में कैसे रखना चाहिए? एनी टिप्स की? चक्रास यानी कि एनर्जी के एक स्रोत हाँ. जहाँ पे वो स्टोर होते हैं. ओके. स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. Exactly. हाँ. So when you talk about working on your energy, so आपके पास different level of energies है. That's why in yoga it has been said that अगर आपके शारीरिक एनर्जी को, शरीर की ऊर्जा को आपको बढ़ाना है, हाँ. आसन कीजिए. हाँ. आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, प्राणायाम कीजिए. ओके. अगर आपकी मन की ऊर्जा को बढ़ाना है, Meditation, ध्यान कीजिए. ध्यान. So that's how. जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन करना चाहिए अगर मन की ऊर्जा को बिठाना है. बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान मेडिटेशन करने बैठता है और ध्यान इधर उधर भटकता है, मतलब सारे थॉट्स आते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, इधर उधर जो मतलब ध्यान भटक रहा है, बेसिकली स्थिर नहीं है. तो इसको कैसे डील करना चाहिए? सभी लोगों को आपने देखा होगा कि सिट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, हाँ. क्लोज योर आईज, पुट योर बोथ हैंड्स इन द योग हाँ. मुद्रा एंड जस्ट ट्राई टू सिट. आई कैन गिव यू श्योरिटी, अगर आप डायरेक्टली बैठने चाहेंगे, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड अर्लियर, हाँ. तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज Correct. आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है. बहुत बैठने थॉट्स का. आते हैं, दुनिया भर के थॉट्स Exactly. आते हैं. और माइंड का एक नेचर है, जितना हम उससे फाइट करेंगे उतना वो ज्यादा से ज्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करेगा. द मोर वी फाइट द मोर इट रेजिस्ट. माइंड का एक सिंपल नेचर है, Okay. इट कैन नॉट बी कंट्रोल, it can be only observed. So instead of controlling your thoughts, try to observe your thoughts. And the moment you start observing your Wow. thoughts, it will get disappear gradually. मैंने ये भी सुना है कि जब ध्यान इधर उधर भटके, इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें टाइम मिल रहा है खुद के साथ रहने के लिए, खुद के थॉट्स पे यू सिट डाउन एंड ऑब्जर्व करने के लिए कि यार एग्जैक्टली आप सोच के आ रहे हो. एंड जब इंसान शांत मन से सोचता है, शांत दिमाग से सोचता है, तो वो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाता है. तो मेडिटेशन करते वक्त ब्रीदिंग भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. तो ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? मेडिटेशन करते वक्त अगर आप सोचें तो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है हमारा माइंड इधर से उधर भटकता है. एंड ब्रेथ इज अ टूल विच कैन कंट्रोल योर माइंड. Nothing else can control your mind unless your breath, because your breath and your brain has a direct connection. Okay. I will explain you. Just think about the moment in your life where you were so much stressed, so much anxious. जब आप गुस्से में थे, आपने पाया होगा कि आपकी ब्रेथ एकदम फास्ट चल रही है. हाँ. And oppositely, on the another hand, think about the moment in your life where you are in the peace, where you are spending your time with your loved ones, with your family. You will observe your breath was running so calm and relaxed. Correct. That's why every yogi has mentioned that, has said that if you cannot control your mind, control over your breath. By just controlling over your breath, you can control your mind. That's why it is really important to control your breath in the meditation. Awesome. तो जैसे मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, और ये बहुत बार बोला जाता है कि इफ़ यू ऑब्जर्व अ टर्टल, वो बहुत साल जीते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो ब्रीदिंग करते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड जो डॉग्स होते हैं वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं. उनकी जब आप ब्रेथ भी ऑब्जर्व करोगे, एंड दैट इज़ वाई दे लिव वेरी लेस. तो ब्रीदिंग करने का सही तरीका क्या है? ब्रीदिंग जो भी आप कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टीज क्या आ रही? ओके, आपकी जो नोस्ट्रल्स है, नासिका द्वार, उसमें बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ योर अनहेल्थी बॉडी, उसमें डस्ट जम जाता है. एंड बिकॉज ऑफ द डस्ट यू कैन नॉट ब्रीथ इन डेप्थली. The sufficient amount of oxygen is not entering into your lungs. That's why in yoga it has been mentioned Shat Kriya. एक ऐसी क्रिया जो आपको बॉडी को बाहर से नहीं अंदर से क्लीन करती है. उसमें एक है कपाल भाती. Kapal Bhati is not pranayam, it is a kriya. Many people have that misconception. So with the help of Kapal Bhati, you are exhaling your breath in a forcefully. It's like
Can we do it? Can we do a small ये? Of चलो, course. you can just So, guide me. first of all, everyone needs to sit in a comfortable position. उनकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए. हैंड्स नॉर्मली रखने हैं. Okay. आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए आपकी नेवल पे, Okay. बिकॉज योर नेवल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ योर 72,000 एनर्जी चैनल्स. सो Nadia. व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद एवरी एक्सलेशन यू आर क्रिएटिंग अ जर्क ऑन योर नेवल. Okay. सो एक्सेल के साथ मैं अपनी बैली को पुल कर रहा हूँ एंड देन रिलीज. एक चीज का आपको ध्यान देना है, इनहेलेशन होगा नॉर्मली विच मीन्स पैसिवली, एक्सेलेशन होगा एक्टिवली. उसका मतलब एक्सेलेशन फोर्सफुली आवाज Fast. वाला करना है Okay. और इनहेलेशन बाय इटसेल्फ होगा, अपने आप होना चाहिए. ओके, सो रिलैक्स योर शोल्डर्स, फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड विथ माय exhalation try to synchronize your breath as well. Relax. आपने पाया होगा that by just properly exhaling आपकी नासिका द्वार नोस्ट्रिल्स क्लीन भी हो रही है, साथ ही साथ आपके ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. एंड दैट्स व्हाई एवरीवन फील द डिजीनेस, हैवीनेस इन देयर हेड. एक फ्रेशनेस और एनर्जी आ जाती है, आई फील. एग्जैक्टली. सो बेनिफिट्स की बात करें, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, बट दिस इज द बेस्ट प्रोसेस टू क्लीन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है उसको डायरेक्टली चेंज कर देगा बाय जस्ट परफॉर्मिंग 50 एक्सलेशन ऑफ द कपालभाति. शुरुआत सिर्फ 50 से कीजिए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर 50 कीजिए. इट विल इम्प्रूव योर ब्रीदिंग, बिकॉज द्वार अगर पाथवे अगर क्लीन होगा तो ही अच्छे से ब्रेथ जा पाएगी. Correct. Then once you have the clear pathway, then how to breathe. Your breath and your navel should be synchronized with each other. अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, so they breathe with their stomach. Okay. उसका मतलब क्या? एनाटॉमी पे अगर हम देखें तो ब्रेथ तो हमारे लंग्स से हम ले रहे हैं, बट डायाफ्राम मूव होता है when हाँ, we inhale and ये हमने exhale. साइंस में भी पढ़ा था. Exactly. Correct. So when we are inhaling and at that time if our stomach is getting expansion, सांस लेते ही अगर पेट फूल रहा है, that means you are breathing correctly. अगर आपके पेट की मूवमेंट नहीं है, that means there is some fault in our breathing system. So Okay. there should be synchronization with your breath and with your navel. Diaphragm जब आप inhale कर रहे हैं तब वो नीचे की तरफ खिसकेगा, so it will expand your belly by itself. So that's the right way Okay, of so breathing. inhale करते हो तो belly expand होनी चाहिए and when you're Exactly. exhaling it should go in. True. Awesome. तो जितने भी लोग ये podcast देख रहे हैं, I would personally advise you कि please do it with us and maybe ये podcast खत्म होने के बाद कपाल भारती को ज़रूर try करना. इसका कोई सही टाइम है करने का कि सुबह करना चाहिए या फिर आफ्टरनून में करना चाहिए? Anything, any The precautions? only thing which you need to make sure, खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए. Okay, तो खाने कितना gap होना चाहिए? At least 1.5 hour का. Okay. Because if you have eat something, so अभी वो आपका खाना स्टमक में ही है. हाँ. And if you are creating a jerk, so आपके खाने आपके स्टमक पे एक प्रेशर बनता है, and that is not good. So that's why you should not. But- And second criteria ये है, before you go to sleep, कपालभाति अगर ना करें, so it will be easier for you, because उससे नींद आपकी तुरंत नहीं आएगी. It will Okay. make you awake. It will make you more aware. Okay. So that's why इन दो सिचुएशन में आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. तो सोने से तुरंत पहले नहीं करना चाहिए. बट आई फील कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लेट नाइट पढ़ाई करनी है या फिर पढ़ते पढ़ते नींद आती है, आई फील दिस कुड बी अ ग्रेट एक्सरसाइज. Exactly. क्योंकि ये करने के बाद तुम्हें नींद नहीं आएगी. True. ऑसम. तो योगा करने का कोई सही टाइम है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह करना चाहिए, सूर्य नमस्कार है सन के सामने करना चाहिए, उससे विटामिन डी भी मिलता है और एनर्जी एक अलग होती है. तो इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम टू डू योगा और एनी प्रिकॉशंस? See, हमारा ह्यूमन बॉडी हाँ. हमारे नेचर साइकिल के साथ चलता है. हाँ. वन सन रेज अप, हमारी बॉडी की अलग अलग ऊर्जा का स्थान जो है वो अवेकन होता है. दैट्स व्हाई इन योगिक स्क्रिप्चर्स इट हैज बीन मेंशन टू प्रैक्टिस योगा इन द ब्रह्म मुहूर्त, यस. बिकॉज तब आपकी ऊर्जा ज़्यादा अच्छे से ऊर्ध्वगामी चलती है, की तरफ बढ़ती है. सो दैट्स व्हाई, बट इन दिस करंट सिचुएशन इन फास्ट फेजिंग लाइफ, नो वन इज वेकिंग अप एट ब्रह्म मुहूर्त. सो ये ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट कितने बजे से होता है? ब्रह्म मुहूर्त मतलब एक ऐसा टाइम कि जो सूर्य उगने से पहले का एक समय
कि जो शुरुआत डिपेंड्स ऑन विच कंट्री यू आर स्टेइंग. Okay. सो सूरज उगने से 1.5 घंटे का पहले से वो समय स्टार्ट होता है और 1.5 घंटे एकदम जब निकल जाता है सो तब का एक 1.5 घंटा मतलब एक प्रहर जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है. Okay. मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन द फास्ट पेसिंग लाइफ, सो आपके लिए बेस्ट टाइम है जब आपकी बॉडी अवेयर है. Okay. मेनी पीपल आई हैव सीन कि इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया है, वो घर पे आ रहे हैं सुबह 6 बजे और वो अभी नींद से उठे हैं. दे आर नॉट इवन अवेयर हाँ. कि मतलब आंखें मतलब चुबा नींद में है. नींद में ऐसा ही है एंड दे हैव रेडी. सो दैट इज नॉट राइट टाइम फॉर यू इवन इफ इट इज मॉर्निंग. वो जबरदस्ती वाला हो जाता है. एग्जैक्टली. एंड योगा शुड नॉट बी डन विद अ फोर्स. जब भी आप कोई भी चीज फोर्सफुली कर रहे हैं इट विल नॉट गिव बेनिफिट्स, इट विल रूइन योर लाइफ, इट विल Okay. रूइन योर. जो भी आप कर रहे हैं वो आपको साइड इफेक्ट्स देगा. दैट्स व्हाई यू शुड नॉट प्रैक्टिस ड्यूरिंग यू आर नॉट अवेयर. Okay. सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा? आइदर इन द मॉर्निंग आइदर इन द आफ्टरनून, जब आपकी बॉडी प्रिपेयर है. Okay. अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है जस्ट गो टेक अ शावर. शावर के बाद बेस्ट टाइम है. How is yoga connected to spirituality? अगर आप देखें स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझें सो व्हाट डज इट मीन? एक ऐसा रिचुअल जो हम स्पिरिट के साथ करते हैं Okay. that connects with our own self, that connects with our energy. That's the spirituality. Spirituality is far away from the religion. It is not religion. Many people have misconceptions. Correct. Spirituality and वो religion. भगवान से कनेक्ट कर देते हैं. हाँ. क्या? हाँ. जो चीज आपको अपने आप से कनेक्ट करे वो है spirituality. Okay. And in spirituality, what connects you to your own self? Your own self. Meditation, your breath work. That's connect. ये जो रिचुअल्स है हाँ. वो आपको अपने साथ कनेक्ट करते हैं. और वो जो ज्ञान है जो अंदर से उत्पन्न होता है, स्फुरित होता है, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है, Okay. वही ज्ञान की तलाश है स्पिरिचुअलिटी की. तो जैसे योगा का स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट है, तो ऐसा है क्या कि योगा को पीरियड्स के टाइम नहीं करना चाहिए? That is a misconception. Okay. You must need to practice yoga because there is nothing. The only thing which you need to avoid is like inversion poses because your blood flow circulate towards your heart. Correct. And as you are in the periods, so it is not recommendable. Instead of what you need to do, you can do some stretching exercises. बैठे बैठे जैसे कि बटरफ्लाई है, Okay. जैसे कि द्विपादासन है, बालासन है. बालासन है, child's pose है. And moreover, asan, you must need to practice breathing exercise, pranayam. Because when you practice pranayam, तो आपकी प्राण ऊर्जा को आप बैलेंस करते हैं. आप अपने लंग्स को, आपकी बॉडी को और ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्राण ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं. एंड दीज आर द डेज जब आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं. सो इफ यू प्रैक्टिस प्राणायाम you will definitely see the good result. Also, yoga helps a lot in cramps और जो पेन होता है उससे. तो आई फील देर आर फ्यू एक्सरसाइजेज दैट शुड बी स्पेसिफिकली डन ड्यूरिंग पीरियड्स. तो बहुत बार ऐसा होता है कि यंग फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स आते हैं या फिर डिले हो जाते हैं, एंड आई एम श्योर कि इसका लाइफस्टाइल से बहुत कनेक्शन है. तो व्हाट आर फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस जो फीमेल्स इंप्लीमेंट कर सके ताकि उनके पीरियड्स रेगुलर रहे? पीरियड्स रेगुलर रहने का प्राइमरी रीजन है आपकी बेटर स्लीप. ओके. And that regulars only when you sleep at the time. Because 12 से 3 बजे का ये जो टाइम है वही गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है जब आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं. एंड इफ़ यू आर हैविंग गुड स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम, आपकी बॉडी अच्छे से उसे हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं उसे अडेप्ट कर पाएंगी. बट ड्यू टू करंट लाइफ स्टाइल एज वी आर वेकिंग अप at the 9 and sleeping around 2 or 3, that's why this problem has increased day by day. So the first thing which you need to change is to choose a right time to sleep. Okay. And once you sleep at the right time, everything will fall into place, right place. And any other tip? The second thing which you can do is to choose the right food. Because food that you are eating right now, उसमें 90% मैदा ही है. Because when you eat मैदा, certain kind of thing which takes long time to digest, so it creates toxins in your stomach, and that toxins imbalance your hormonal system. So that's why you should avoid such a food that takes longer time to digest. And the second thing, sugar, because the higher amount of sugar which you will add on, और ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा addicted है sugar से, more than anything. So these are some things which you need to control
in your food lifestyle. And above this all, your stress impacts a lot because whatever you are, it's all about your mental health. If your Correct. mental health is well, everything will be in a right way. So 3 चीज़ें. सबसे पहले आपकी स्लिप, उसके बाद राइट फूड, एंड देन वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. इफ यू विल सॉर्ट आउट दिस 3 थिंग, you will have better hormonal system and you will have your PDS at the right time. बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल्स पीरियड्स डिले हो जाए, पर्टिकुलर डेट पे ना आए, तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन लेते हैं या फिर पिल्स लेते हैं, या फिर पीरियड्स जल्दी आ जाए. देर आर थिंग्स अवेलेबल. सो डू यू थिंक दिस इज अ हेल्दी वे? Of course, if you are not in the right place, कि जब आपकी सिचुएशन बिगड़ी हुई है तब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है ही, बट टू प्रिवेंट दैट you need to change in your lifestyle. ओके. To cure that, of course, as you are already into that situation, that cannot be curable with some, it cannot directly curable by just changing your lifestyle. So सबसे पहले you need to start your medication, and then gradually you need to slow down the process, and then just change and adapt the right lifestyle. सो आई फील जितना नेचुरली आएगा रादर देन हैविंग दीज पिल्स और ये सब, दैट वुड बी बेटर फॉर योर Of course. बॉडी एज वेल. True. तो अ बिगिनर हु वांट्स टू स्टार्ट देयर योगा जर्नी, व्हाट वुड बी योर 3 बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस टू देम? The first advice I would like to give to all of them is accept yourself. Doesn't matter what's the size of your body, what's the height, what's the weight, accept it. And then try to gradually change it. Second thing, try to have a mentor. Find a mentor, those who can help you. Because without mentor, the journey will take longer time and it might be difficult. So it will be easy with the right mentor, with the right yoga guru. Third thing, have a routine, have a schedule. Because if you'll practice yoga once a week, if you'll practice yoga एक बार किया, then rest लिया, फिर 15 दिन बाद किया, it is not going to help you. You must need to have a routine. At least अगर 3 बार भी वीक में आप कर रहे हैं, so कीजिए. बी कंसिस्टेंट. बी कंसिस्टेंट. इट डजंट मैटर कि आप 1 घंटा फुल करें. शुरुआत 15 मिनट से कीजिए, 15 मिनट्स. इवन इफ यू कांट गिव 15 मिनट्स, गिव 12 मिनट्स to 12 round of sun salutation. And that will change your muscles. That will change the level of flexibility which you are having. That will change the level of strength which you are having. So you should have a routine. So these are the 3 advice which I would like to give. तो बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आई वाज वेरी श्योर कि मुझे जॉब या प्रैक्टिस ये सब नहीं करना है, एंड विद दैट आई शिफ्टेड माय प्रोफेशन टू कंप्लीट टू बीइंग अ योगा ट्रेनर. और मुझे बहुत बार बहुत रिलेटिव्स ने बोला था कि दिस इज़ नॉट अ फुल टाइम जॉब और ये बहुत पार्ट टाइम है, एंड तो आज उनको बता दो कि एक योगा ट्रेनर कितना कमा सकता है. See, as a being a yoga teacher, I cannot give you the exact amount. हाँ, बट ऑन अ रेंज. But एक चीज कंफर्म है कि it doesn't matter which profession you are choosing. If you are thriving, if you are be at the top of that 1% in that field of work which you are doing, definitely you are going to earn more than other field. So as a being a best yoga instructor of the UAE awarded as the best yoga instructor, of course my income might goes up, might goes down sometimes. But if you are choosing as a yoga career, so first thing I would like to share, don't have more expectation. Because एज अ बीइंग योगा टीचर आपकी जो वेल्थ है वो फाइनेंशियल वेल्थ नहीं होगी, पर आपकी जो रियल वेल्थ होगी वो लोगों का प्यार होगा आपके लिए. बिकॉज द इम्पैक्ट विच यू आर गोइंग टू क्रिएट इन अदर पीपल्स लाइफ इज गोइंग टू बी इनसेन. बिकॉज यू आर चेंजिंग अदर पीपल्स लाइफ, यू आर चेंजिंग द वे दे आर थिंकिंग, यू आर चेंजिंग देयर हेल्थ, द वे दे आर ईटिंग. उससे बड़ी चीज क्या आप लोगों को दे सकते हैं? एंड दैट इज गोइंग टू चेंज दिस वर्ल्ड एंड मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस टू बी लिव. So that's our real wealth, and that's what we earn. So someone who wants to start a career in yoga, what would you advise to them? पहले आप देना सीखिए. The more and more you give, the more and more you get. Universe का एक law है. But before that, you must need to work on yourself. It's like a flower. If it has the fragrance, then only it can spread the fragrance to others. उसी तरीके से, if you will learn yoga properly, because I have started my journey at the age of 6. Just imagine. So till now I'm practicing on myself. So whatever I have learned, then I realize that now I need to share it with others. So that's how it will work. So first of all, जो भी आप कर रहे हैं पहले अपने आप कीजिए. Work on yourself, and the experience which you will get by working on yourself, and that you can share it to others. आप खुद ही देखिए, सुरभि,
She is at the peak because CA, it is not a small career. But even though as a being a CA, she has choose to become a yoga teacher, yoga instructor. So that shows, that is the perfect example that a person who is earning well, who is financially stable, but even though she is choose to give something, whatever she has experienced throughout his journey. So that's what you also need to understand, that a career that will give you fame, name, money, a good reputation, उसके बाद क्या चाहिए? So that's why everyone should try at least. If you are interested, that you should choose yoga. I feel this is a area, this is a career which is evergreen. मतलब योगा, फिटनेस, ये कंटेंट हमेशा चलेगा बिकॉज आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि पीपल वुड नीड दैट गाइडेंस. So if someone wants to start a career in yoga, who wants to build a business out of it, what would be your advice to them? पहली चीज, have a passion. If you are having a passion, then you will not need any motivation to start. Even if you are not earning well, even आपकी जेब खाली है, फिर भी अगर आप काम करने के लिए तैयार है तो आप लंबे चलेंगे. That is the first thing. Because this thing, this career which you are choosing, initially it is not going to pay you well. That's for sure. That you must need to accept. So prepare for that. So that's the first thing. Second thing, you need to have a certification course. योगा टीचर बनने के लिए you need to have YTTC, which means योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, और वो भी affiliated होना चाहिए योगा अलायंस से. Why? Because if you are getting a certification course and that is affiliated with the Yoga Alliance, so that will give you eligibility to teach yoga all across the globe. So that's why it is really important. Third thing, once you get your degree, once you get your certification, first try to teach to your family. Because see the response. You cannot directly say to any group of people because initially आपको fumbleness होगी. Initially you will feel hesitation. हाँ. कि इतने बड़े लोगों को मैं कैसे सिखाऊं, बट धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आती जाएगी. एंड द मोर एंड मोर यू टीच, यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस, यू विल हैव दैट योर ओन यूनिकनेस टू शेयर इट विद अदर्स. और जो आपने सीखा है इस कोर्स में, आपको एक टाइम बाद ऐसा लगेगा दैट इट वॉज जस्ट नथिंग, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस ही खुद आपको इतना ज़्यादा सिखाएगा, स्किल्ड बनाएगा. और एग्जैक्टली. करेक्ट. जिम वर्सेस योगा, व्हिच वन इज बेटर? 100% योगा. Not only better, supremely better. Okay. और मेरे जिम वाले भाइयों, you may get offended that wow, how it can be better. The simple reason is that in gym you lift weight, you resist with the weights, but in yoga you do the same resistance training with your own physical body. And not only about the physical training, yoga can help you to improve your physical body as well. It can help you to build your mental strength. It can help you to sharpen your focus. It will give you the clarity of mind which helps you to take the right decision. It improves your internal energy which uplift, जो आपकी ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वगामी बनाती है आपके. इन शॉर्ट, अगर आपके जीवन को आपको हर तरफ से 360 एंगल से इम्प्रूव करना है, सो योग साधना इट्स द राइट वे टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, नॉट ओनली योर फिजिकल बॉडी. सो दैट्स व्हाई I personally believe that yoga is the best. सुना तुम लोग ने, तो इसलिए थोड़ा सा योगा भी कर लिया करो. सात्विक, तामसिक और राजसिक, तो इंसान को किस तरह का खाना खाना चाहिए? हर एक प्रकार के फूड की डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी होती है. जैसे कि आपने मेंशन किया सात्विक, राजसिक, तामसिक. हाँ. व्हाट डज इट मीन? सात्विक मतलब जिसमें एक बैलेंस है, जिसमें सत्व है. राजसिक जो आपको ज़्यादा ही एनर्जी से भरपूर कर दे. और तामसिक जो आपको लेथार्जिक बना दे. सो दोनों में से, तीनों में से सबसे बढ़िया है सात्विक आहार, जो आपको इतना ज़्यादा स्फूर्तिलाभी, इतना ज़्यादा अवेक भी ना कर दे. जैसे कि कॉफ़ी जो आपको तुरंत ही अवेयर कर देती है, आपकी हृदय की धड़कनें बढ़ा देती है. सो दैट इज़ राजसिक, जो आपको एक्टिव करती है. तामसिक यानी कि कैसा, आपने एकदम हैवी फूड खाया जो आपको लेथार्जिक बनाया, यू फील्स लाइक नाउ आई नीड टू स्लीप. सो दिस बोथ फूड आर जस्ट पुलिंग आउट सम एनर्जी. बट अगर आपने सात्विक खाया जो आपकी ऊर्जा को समतल रख रहा है, सो आप पूरे समय एनर्जी से भरपूर रहेंगे एंड यू विल बी फ्रेश. अगर किसी नॉन वेजिटेरियन को आप बोलोगे कि छोड़ दो नॉनवेज खाना, तो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं. सो हाउ वुड यू कन्विंस अ नॉन वेजिटेरियन टू क्विट नॉनवेज एंड शिफ्ट टू अ सात्विक डाइट?
I'm not going to offend them by just saying change your food, change your diet. I will just make them realize that why they should change. The first thing, आपका जो इनर सेल्फ है वही आपको मना कर रहा है. इफ़ यू ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ, जब भी आप किसी जीव को कटता हुआ देखते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी. व्हेन यू सी, उसकी जो चीखें है, आपके कान को सुनना पसंद नहीं होगा. कैन यू स्मेल दैट स्मेल जो ब्लड की आ रही है? सो आपकी इंद्रिया ही आपको मना कर रही है दैट दिस फूड इज़ नॉट फॉर यू. उसमें आप मरी मसाला डाल के, उसमें आपको पका के आप खा रहे हैं. दैट्स वाई यू आर जस्ट निग्लेक्टिंग द क्रुशियल पार्ट ऑफ दैट and you are just eating non-veg. So just imagine yourself that you are at this position, you are at this situation, and some bigger species who is having more intellect than you, who is having more power than you, who is controlling over you, and they are eating you. So you will directly stop. So that's what you need to do. क्या नॉन वेजिटेरियन डाइट में वेजिटेरियन डाइट से ज़्यादा प्रोटीन होता है? Of course, it's fact. But only because of इसमें ज़्यादा प्रोटीन है ताकि आपको खाना चाहिए? नो, माई आंसर इज़ नो. बिकॉज प्रोटीन आपको वेज फूड में भी मिल जाएगा इफ़ यू विल कंज्यूम इन अ राइट वे. बिकॉज वेज फूड उसमें नो डाउट प्रोटीन कम है, पर अगर उसको सही मात्रा में राइट बैलेंस के राइट कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप खाएं तो आपकी प्रोटीन की फुलफिलमेंट ईजिली हो जाएगी. वेजिटेरियन डाइट में ऐसे क्या ऑप्शंस है जो खा के प्रोटीन मिल सके? दैट एवरीवन नोज. एक ही आंसर है, मिल्क प्रोडक्ट, साथ ही साथ दाल, पल्सेस, वही बेस्ट सोर्स है वेज डाइट में टू हैव. बट इट इज नॉट ईजी टू डाइजेस्ट. दैट्स वाई व्हाट यू नीड टू डू, जो स्प्राउट्स है उसे आप थोड़ा बॉईल करके खाइए सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू डाइजेस्ट. मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा आ गई है दैट सिंस डेकेड्स people are extracting, like big companies are extracting proteins from the milk. So you can start having whey protein. That is completely fine. That is easy to digest. So you should start having. Do you think that protein powder actually works? Yes, it works if you are consuming the right protein. Because there are so many brands right now in the market. Kai brands, because to give you the faster result, they are putting steroids. So you must need to be aware. You must need to put the right research on it. So if your goal is to build your muscle, to build your body, so you need to choose the right brand, right protein, which is pure. What is the best solution to avoid hair fall? One simple hack will change. Have you realized hair fall की ये जो प्रॉब्लम है पिछले एक डेकेड से ही ज़्यादा बढ़ गई है? उसका प्राइमरी रीज़न जो मैं बिलीव करता हूँ, इट इज़ द हैंड हेल्ड शावर विच यू आर टेकिंग. बिकॉज आयुर्वेद में एक लाइन लिखी गई है दैट इफ यू आर टेकिंग शावर विद हॉट वाटर डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, सो इट इज गोइंग टू ruin योर हेयर एंड योर आई हेल्थ. दैट्स वाई यू शुड नॉट डायरेक्टली पोर द हॉट वाटर ऑन योर हेड. और ये जो हैंड हेल्ड शावर आ गए हैं, नल चालू किया, डायरेक्टली पानी ऊपर से टपक रहा है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू डैमेज योर रूट्स. सो इंस्टेड ऑफ दैट बाल्टी से नहाइए एंड ट्राई टू हैव कोल्ड शावर ऑन योर हेड. If you are putting your body, if you are taking shower with a hot water, for your body it's supreme, it's really good. But for your hair and your eye, it's not good. What are 3 best food items that a person should have to have strong, healthy and shinier hair? 3 things. First, जो चीज़ विटामिन सी से एनरिच है वो आप कंज्यूम करना स्टार्ट करिए. Examples? आंवला. सेकेंड थिंग, सिट्रस जूसेस जैसे कि संतरे का, मौसम्बी का जूस है. एंड द थर्ड थिंग, वन ऑफ द बेस्ट, दैट इज त्रिफला, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फल, आंवला, बहेड़े एंड हरडे. दैट इज गोइंग टू क्लीन योर इंटरनल गट हेल्थ. बिकॉज गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके स्किन के साथ, और स्किन अगर आपकी हेल्थी नहीं है, हेयर फॉल होने ही होने हैं. सो यू शुड स्टार्ट हैविंग दिस 3 फूड. एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या योगा करना चाहिए? आपका फेस का ग्लो पता है क्यों कम होता है? Because it doesn't get proper blood flow towards your face. So to bring the blood flow towards your face, आपको ऐसे इन्वर्जन पोजेस करने चाहिए ताकि आपकी ब्लड सप्लाई फेस के ज़्यादा आ सके. जैसे कि शीर्षासन, वन ऑफ द बेस्ट पोज टू ब्रिंग द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर हेड.
दूसरा सर्वांग आसन, अगर वो भी नहीं कर सकते पर्वतासन कीजिए, अगर वो भी नहीं कर सकते चाइल्ड्स पोज कीजिए, अगर वो भी नहीं कर सकते मंडूका आसन कीजिए. सो दीज आर द 5 पोजेस दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू टू ब्रिंग द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर हेड, और वो आपके फेस का ग्लो काफ़ी हद तक बढ़ाएगा. बेस्ट टिप्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. डायबिटीज़ कंट्रोल किससे होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से और इफेक्टिवली वर्क करवाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोज है मंडूका आसन, इन विच यू बैंड योर थंब, मेक अ फिस्ट, पुट योर बोथ palms beside the navel, breathe in, and with the exhalation you bend forward in a child's pose. We will Vajrasan. show the pose exactly. So that is the best pose to in that. So that is the best pose. Second thing which you can do, change the order of your food consumption, which means जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें मेनली 3 कैटेगरी होती है, फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट. उसमें से जो भी स्वीट फूड है, जो भी नमकीन है, I'll repeat, change the order of your food. Second thing, by just changing the order of your food, you can decrease the 70% of the glucose spike. So for that, what you need to do, जो भी स्वीट है उसे लास्ट में खाइए, बिकॉज जो भी चीज़ आप पहले खाते हैं आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो सीक्वेंस में काम करती है. सो यू शुड स्टार्ट हैविंग सैलड. सैलड से क्या होगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम क्लीन होगी, एंड देन इट विल एब्जॉर्ब द शुगर, द ग्लूकोज इन अ प्रॉपर वे. वो डायरेक्टली स्पाइक नहीं होगा, आपके ग्लूकोज का स्पाइक डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा बाय जस्ट ईटिंग योर स्वीट एट द एंड ऑफ द मील. What are the best tips for diabetic patients? By just changing the order of your food, you can decrease the glucose spike by 70%. जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें सबसे पहले सैलड खाइए. कौन सी चीज़ पहले और कौन सी चीज़ बाद में खाते उससे भी फर्क पड़ता है, ना सिर्फ what we are eating. Order of your food also need to be correct. पहले सैलड खाइए, उसके बाद आपकी जो भी रोटी सब्जी है वो खाइए, एंड एट द एंड ऑफ योर मील यू कैन हैव सम स्वीट इफ़ यू वांट. सो उससे क्या होगा, जो भी आपने स्वीट खाया है उसका ग्लूकोज स्पाइक एकदम डिक्रीज हो जाएगा एंड इट विल डाइजेस्ट इजीली. What is the main reason for any illness? सभी बीमारियों का अगर हम रूट कोज देखें, सो इट इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ योर 3 दोषास. 3 दोष मतलब क्या, वात, पित्त और कफ. कफ की अगर हम बात करें, सो जिससे आपको अस्थमा होता है, जो आपके शरीर की फैट ज़्यादा बढ़ाता है. पित्त जो आपके शरीर की गर्मी बढ़ाता है, जैसे कि एसिडिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम. और फिर वात मतलब आपके शरीर के सभी जॉइंट्स का पेन होगा, बैक पेन होना, नेक पेन होना. सो इन सभी 3 ही मेन कैटेगरी से डिफरेंट डिजीज क्रिएट होते हैं. एंड सॉल्व दैट ऑल 3 दोषास, you need to have Triphala to balance your all 3 doshas. So by just controlling your 3 doshas, you can get rid from all the disease. जंक फूड कैसे नुकसानदायक है? नाम ही जंक है, so of course it is junk for your body. कोई भी जंक फूड अगर आप देखें, so उसके अंदर डले गए प्रिजर्वेटिव्स उनको और ज़्यादा टॉक्सिकेट बनाता है उस फूड को. जैसे कि इफ़ यू पुट द ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड जो घर की बनी हुई है, रोटी, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑन द बिसाइड इफ यू विल पुट एनी ब्रांड्स, मैकडोनल्ड्स की जो पाव है, जो ब्रेड है, इफ यू विल पुट, हमारी घर की बनी हुई जो ब्रेड है वो अगले दिन ही बास मार जाएगी. बट एमडी की 3 दिन तक कुछ नहीं होगा. सो दैट शोज भर भर के उसमें प्रिजर्वेटिव्स है. सो व्हेन यू ईट प्रिजर्वेटिव्स, सो दैट डजंट इजीली डाइजेस्ट एंड दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ टॉक्सिकेंट एंड दैट ruins your gut health, and that's why it is not good for your health. Is sugar really bad? Not at all. But excessive consumption of sugar is bad for you. And along with that, a sugar which doesn't have fiber and which has been produced with higher refineries and that is processed, that is bad for you. For example, if you are having a sugar which is from fruits, जैसे कोई भी फ्रूट्स खा रहे उसमें ऑलरेडी शुगर है ही, सो वो आपको नुकसानदायक नहीं है, बिकॉज यू आर हैविंग दैट शुगर विद द फाइबर. उसका फाइबर कंटेंट भी आप खा रहे हैं, सो इट विल बी डाइजेस्टेबल. बट जो प्रोसेस्ड शुगर है, जो रिफाइनरी से आई हुई है, दैट इज नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट इजीली, एंड दैट इज गोइंग टू स्पाइक, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर ग्लूकोज स्पाइक, एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर यू.
कॉफी, टी और हर्बल टी, क्या लूं? Coffee, no. Tea, sometimes. Herbal tea, yes. Because if you are having a water with having some quality of some nutrition, जैसे कि ग्रीन लीव्स है, तो उसके न्यूट्रिशन पानी में घोल के आप ले रहे हैं, दैट इज द राइट हर्बल टी. टी जो मिल्क के साथ बनी हुई है, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. और कॉफी जिसमें कैफीन है, इट्स बेटर टू अवॉइड. एंड इट्स मोर देन बेटर कि आप तीनों के तीनों से ऊपर आ जाओ, बिकॉज एनीथिंग विच इज मेकिंग यू एडिक्टिव, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. योगा करने से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए? ऐसा खाना जो आपकी योग प्रैक्टिस को डिस्टर्ब ना करे, वैसा खाना चाहिए. जैसे कि लाइट फ्रूट्स दैट यू कैन हैव इट हाफ एन आवर बिफोर द प्रैक्टिस. अगर आपको पेट भर के खाना है तो 1.5 घंटे पहले खाना चाहिए. योगा करने के बाद तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्बैलेंस होता है. ओके. सो टू सेटल इट डाउन 30 मिनट्स के बाद कुछ भी खा सकते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन लाइफ? The longer you breathe, the longer you live. The longer you breathe, which means the more amount of oxygen you are intaking. More oxygen, more प्राण ऊर्जा. ज़्यादा प्राण ऊर्जा तो ज़्यादा आपके ऑर्गेन्स को और अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करने में मदद रूप होगी. एंड दैट हेल्प्स यू टू लिव लॉन्गर. आजकल लोग योगा नहीं कर पाते, तो इसका क्या सोल्यूशन है? उसका रीज़न एक ही है, दैट पीपल थिंक दैट वी डोंट हैव टाइम, बट एक्चुअली इट्स नॉट राइट. अगर आप अपने शरीर को 15 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स पूरी ज़िंदगी जो भी आपने पैसा कमाया है, वो पूरा पैसा एट द एंड ऑफ द लाइफ यू आर गोइंग टू गिव टू योर बॉडी बैक. सो इट्स बेटर टू एटलीस्ट गिव सम टाइम टू योर ओन फिजिकल बॉडी, बिकॉज आपका शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे लाइफ स्पैन तक, पूरे लाइफ टाइम तक आपके साथ रहने वाली है. सो एटलीस्ट गिव सम टाइम, मेक अ प्रायोरिटी, चूज to be a healthy person and choose to live in a healthy body. तो अगर आप कोई भी 3 सेलिब्रिटीज को योगा सिखा सकते हो, तो कौन से 3 सेलिब्रिटीज होते हैं? I would choose 3 celebrities. The most powerful person, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी. जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, मुकेश अंबानी. जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है, अभी धीरेन्द्र शास्त्री. इन वन क्लास. आपका फेवरेट योगा पोज? स्कॉर्पियन. बचपन का एक ऐसा इंसिडेंट दैट स्टिल मेक्स यू स्माइल? Throwing dustbin in my classroom. अगर आप एक कोई भी कंट्री में जाके योगा सिखा सकते थे, व्हाट वुड दैट कंट्री बी? Costa Rica. आपका फेवरेट कलर? Yellow. योर फेवरेट ड्रिंक? Coconut water. योर फेवरेट सिटी इन इंडिया? The yoga capital of India, Rishikesh. योर फेवरेट पर्सन इन योर फैमिली? Sister. If you could create your own yoga pose, which one would that be? The Shiva version of headstand. So what was the most exciting part about this podcast? Of course, the flow of the podcast, because it was like synchronized. Whatever we have discussed, it is really helpful for all the people. And the second thing, the setup, of course, because every single thing is like perfect. And also, I would like to thankful for Kapoor AV Solution for this amazing setup. It was really great experience here. So thank you, Yash, for being on my podcast. It was so great talking to you, and I am sure all the viewers watching this podcast, they are inspired and उनको थोड़ी सी inspiration मिली होगी योगा करने के लिए. Thank you for being an amazing guest. Thank you so much, Surbi, for having me here in this wonderful podcast. And you are doing such an amazing job. Thank you.